Everyone, welcome back to our channel Core Logic, and this is going to be the third video of our Smart India Hackathon 2026 series. So before that, we have completed two videos in this series. Firstly is regarding the registration, and the second one is regarding the team formation process and some tips to build a good team. So the response has honestly been pretty good, and it motivates me and Priyanshi to continue the series. So everyone who has recently joined us or subscribed us, welcome to the Core Logic family. So this Smart India Hackathon 2026 series will cover on our channel. We have completed the first video, which was regarding the registration and SPOC updates. Second one was regarding team formation in Smart India Hackathon. Now we are on this third one, which is the updates regarding Smart India Hackathon and some tips on internal hackathon and how to win it. The video 3, I have two updates which are given on the official website of Smart India Hackathon, and then I'm going to answer some questions regarding the internal hackathon, which most of you have, like how the teams get selected, who nominates our teams, like how many minutes we get for our presentation, what do they evaluate on, and everything regarding the internal hackathon you will get to know in this video. So let's begin with the video. Update is regarding the SPOC registration, which I've already talked about in my first video. So if you don't know about it, you can go and see the first video of the series. Now the deadline for that has been extended. Here it was 31 July, I think, but now the extended deadline is 14th August 2026. So you can check on the official website whether your college has registered for the SPOC or not. So I'll give you a walkthrough on how to check if your college has registered or not. What you have to do is you have to come on this website sih.gov.in, know your SPOC, this link, and here you can see all the college and institutes that have registered with SIH for the SPOC. तो यहाँ पे मुझे वही सारे इंस्टीट्यूट्स नेम, AICTE कोड, इंस्टीट्यूट टाइप, SPOC नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट. तो यहाँ पे आके अपने कॉलेज का नेम सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सी कि तुम्हारे कॉलेज ने रजिस्टर कराया कि नहीं. बट अभी डेडलाइन एक्सटेंड हो गई और अगर अभी तक भी नहीं करा है देन यू कैन टॉक विद द HOD या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो दे कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस एंड डू द SPOC registration. Now the update 2. So according to the latest Smart India Hackathon guidelines, तो जो कॉलेजेस हैं उनको ज़रूरत नहीं है SIH प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रिलीज़ होने तक रुकने के लिए अपनी इंटरनल हैकाथॉन कंडक्ट करने के लिए. तो पहले क्या होता था कि कॉलेजेस को वेट करना पड़ता था कि SIH अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाले तो हम अपनी इंटरनल हैकाथॉन कराएंगे. बट इस बार क्या करें कि अभी इन्होंने गाइडलाइन निकाली है कि कॉलेजेस को नीड नहीं है वेट करने के लिए. तो इंस्टीट्यूट्स आर एडवाइज टू कंडक्ट द इंटरनल हैकाथॉन यूजिंग एनी सूटेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट और इवन स्टेट लेवल सोसाइटी प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ डिलेइंग द प्रोसेस. तो होगा क्या कि SIH अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थोड़ा डिले करके निकालेगा. एंड इफ़ तुम्हारा कॉलेज इंटरनल हैकाथॉन बहुत देर में कराएगा तो मान लो तुमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करी होगी उसमें 500 सबमिशन हो गए. 500 इज़ द मैक्स सबमिशन जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हो सकता है. तो अगर 500 तब तक हो गए होंगे तो तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा वो वेस्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सर्च करना पड़ेगा. दैट्स वाई जितनी जल्दी हो सके अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करो या HOD से, जो भी SPOC है, कि इंटरनल हैकाथॉन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, ताकि तुम अपने गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रजिस्टर कर पाओ. इसीलिए SIH भी यही कह रहा है कि अब रुकने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए. सो योर कॉलेज कैन कंडक्ट द इंटरनल हैकाथॉन बेस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इफ़ कॉलेज डिसाइड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट देन वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में लाई करेगी, विच इज़ स्मार्ट कैंपस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, एग्री टेक एंड रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर एंड एक्सेसिबिलिटी. तो यही 4 पैटर्न फॉलो होते हैं अगर कॉलेज कभी डिसाइड करता है इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. तो ये तुम GPT पे डाल के इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाल सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट. आफ्टर द 2 updates we have come to the main point of this video, that is how exactly does the internal hackathon work, how does the teams get selected, who nominates the teams and everything regarding internal hackathon. तो इसमें जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो इंटरनल हैकाथॉन काम कैसे करता है और कौन से स्टेज पे आता है वो समझ लेते हैं. सबसे पहले SPOC रजिस्ट्रेशन होता है, देन इंटरनल हैकाथॉन होता है, उसके बाद लॉन्च होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का. ये जो है ना, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लॉन्च कभी पहले भी हो जाता है बट अब जब डिले हो रहा है तो दैट्स वाई दे हैव गिवन दैट अपडेट 2 जो मैंने बताया. उसके बाद वही रिपोर्ट, उसकी कंपाइलेशन होती है, इंटरनल हैकाथॉन के रिपोर्ट की कंपाइलेशन, फिर टॉप टीम्स की नॉमिनेशन, फिर स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ और फिर आगे का प्रोसेस. तो 3 स्टेजेस में है बेसिकली, इंटरनल हैकाथॉन, देन SIH में पोर्टल सबमिशन एंड देन थर्ड इज द ग्रैंड फाइनल्स. ठीक है. हाउ मेनी टीम्स क्वालिफाई, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है. देखो तुम्हारे कॉलेजेस में जितनी टीम्स हैं वो सारी की सारी क्वालिफाई नहीं करेंगी. मान लो सारे ही अच्छे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी ही क्वालिफाई कर देंगे. पहली बात तो जो भी इंटरनल हैकाथॉन में सेलेक्ट होगा वो आगे जाएगा. जो कॉलेज का SPOC है वही नॉमिनेट करेगा टीम्स को बेस्ड ऑन इंटरनल हैकाथॉन का रिजल्ट्स, एंड मैक्सिमम 50 ही शॉर्टलिस्ट होंगी एक कॉलेज से, और अगर वो यूनिवर्सिटी है देन 100 होंगी. तो 50 में से 45 शॉर्टलिस्टेड एंड 5 वेट लिस्टेड. 50 टीम्स शॉर्टलिस्ट होंगी एक कॉलेज से, जिसमें से 45 शॉर्टलिस्टेड होंगे एंड 5 वेट लिस्टेड. वो वेट लिस्टेड वाले तब शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे जब किसी शॉर्टलिस्टेड टीम का किसी रीज़न की वजह से वो पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, देन द वेट लिस्टेड वुड गेट टू द शॉर्टलिस्टेड. एंड इफ यूनिवर्सिटी है देन 100 होंगे. इंटरनल हैकाथॉन के बाद टीम्स का नॉमिनेशन कैसे होता है, बेसिकली जो कॉलेज का SPOC है वो सारे मेंबर्स की डिटेल, ऑथराइजेशन, जितनी टीम्स पार्टिसिपेट की, इवेंट्स की फोटोज़, ये सब कुछ SIH ऑफिशियल्स को भेजते हैं. देन उसके बाद वो ये सब चेक करते हैं कि ये सही से हुआ था कि नहीं हुआ था, एंड देन जो इंटरनल हैकाथॉन है वैलिडेट होती है और उन टीम्स को फिर
SIH के पोर्टल्स पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनमें से टॉप 5 टीम्स फॉर ग्रैंड फाइनल्स। ठीक है, तो सेम पॉइंट्स हैं, अ मैक्स ऑफ 50 टीम्स विल बी शॉर्टलिस्टेड। और हाँ, कोई भी बार नहीं है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैटेगरीज के लिए। बेसिकली 50 शॉर्टलिस्ट करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 50 की 50 हार्डवेयर की हो और 49 हार्डवेयर की हो और एक सॉफ्टवेयर की हो, 49 सॉफ्टवेयर की एक हार्डवेयर की, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी इफ़ यू आर इन हार्डवेयर कैटेगरी कि ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर है जिसमें से हार्डवेयर वाले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोई बात नहीं है। तो 50 टीम फॉर कॉलेजेस एंड 100 फॉर यूनिवर्सिटी। टीम लीडर को क्या क्या सबमिट करना होता है? इफ़ द टीम गेट शॉर्ट लिस्टेड इन द इंटरनल हैकाथॉन, देन टीम लीडर को क्या सबमिट करना होता है इन द SIH पोर्टल? आखिरी में टीम नेम हो गया, जो 5 मेंबर्स के नेम हैं, उनके जेंडर्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आइडिया टाइटल, आइडिया डिस्क्रिप्शन, आइडिया प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमें PPT देनी है, सब कुछ देना पड़ता है। ठीक है, जो जो उसमें मेंशन होता है, वैसे दीज 10 थिंग्स आर मेंशन, ये उसी PDF में से है जो SIH ऑफिशियल्स ने अपने वेबसाइट पे दी हुई है। हाउ कॉलेजेस evaluate teams and how to maximize your chances of getting shortlisted in the internal hackathon to go to the grand finals। देखो, सबसे पहली टिप जो है दैट इज़ एवरी टीम मेंबर शुड पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंटेशन। तुम्हारा जो भी इवैल्यूएट कर रहा होगा इन योर कॉलेज, उसका पहला चीज़ वो यही देखेगा कि सारे लोग बोल पा रहे हैं कि नहीं। वो कभी भी ऐसे टीम्स को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे जिसमें सिर्फ एक बंदा बोल रहा होगा और सारे शांत करें। तो हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है, अबाउट द आइडिया। A second tip would be present strictly within the allotted time। मोस्ट कॉलेजेस में 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन होता है और 3 मिनट्स का Q&A होगा। ये वैरी कर सकता है कॉलेज बाय कॉलेज, बट अगर उन्होंने तुम्हें बता रखा है कि 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है और 3 मिनट्स का Q&A है, तो प्लीज़ इसको ही फॉलो करना। अपने मन से ये मत कर देना कि मैंने 20 मिनट्स ले लिए, मेरा मन है ऐसा। वो इसके मार्क्स काटेंगे कि तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो टाइम लिमिट्स को। ठीक है, तो जो उन्होंने बोला है 5 मिनट्स तक खत्म करना और 3 मिनट्स का Q&A जो वो करवाएंगे। ठीक है, जस्ट फॉलो द टाइम लिमिट्स जो उन्होंने दी हुई हैं। मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी टीम देखी हैं जो ऐसा कर रहे थे कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक ले जा रहे थे प्रेजेंटेशन को, एंड दे डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। तो दे ऑल्सो टोल्ड दैट द मेंटर्स वर सेइंग कि 5 मिनट तक रखो, जितना हमने बोला है उतने ही टाइम लिमिट तक रखो। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माई थर्ड टिप वुड बी ब्रिंग द PPT इन द प्रिस्क्राइब्ड SIH फॉर्मेट, जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, जो कि SIH वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाउ लेट मी टेक यू टू दैट ऑफिशियल फॉर्मेट जो कि SIH वेबसाइट पे है। यू कैन कम ऑन SIH.gov.in एंड देन यू कैन कम ऑन गाइडलाइंस, फिर आइडिया PPT। ठीक है, it is getting downloaded। So this is the official format of PPT provided by SIH। You can download it from their official website। पहला पेज ये होगा, second page would be the idea title, third would be technical approach, fourth would be feasibility viability, fifth would be impacts and benefits, sixth would be research and references, and seventh ये पेज हमें डिलीट करना होता है, ये लिखा भी है you can delete this slide। तो this is the PPT you would submit if you get shortlisted in a internal hackathon। Now I would be sharing my PPT also, वो हम अगली वीडियोस में करेंगे, but this is the format which you should follow for the internal hackathon। Fourth tip would be that a working prototype or demo is given additional weight। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, अगर किसी के पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप होगा, कोई वर्सल पे या रेंडर पे डिप्लॉयड बैक एंड या वर्सल पे डिप्लॉयड फ्रंट एंड, कुछ भी डिप्लॉयड होगा जिस पे वो टेस्ट कर पा रहे होंगे, तो इट वुड गिव एडिशनल वेट टू द टीम एंड मोर चांसेस ऑफ बीइंग शॉर्टलिस्टेड। My last step is that in your college, judges will basically evaluate on these factors: novelty, technical depth, implementation, feasibility, presentation quality, और क्या responses हैं Q&A में, कितने confidence के साथ तुम कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बस। ठीक है, एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉलेज का मेरे पास क्राइटेरिया है जो उन्होंने रखा था। तो टीम्स वर जज ऑन दिस फॉलोइंग पैरामीटर्स, ईच कैरिंग 10 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 50 थे। ठीक है, तो पहले 10 मार्क्स थे नॉवेल्टी के, अगले 10 मार्क्स थे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, कितने अच्छे से प्रॉब्लम्स को मॉड्यूल्स में बांटा है वो सब के। 6 थे कि कितने स्किल्स हैं इन द स्टूडेंट्स एंड कितना वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर पाए, कितनी टेक्निकल डेप्थ है। C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। D ये था कि कितना अच्छे से पिच कर पा रहे हैं ऑफ द टीम, एंड लास्ट वन ऑफ 10 मार्क्स वॉज द एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग क्वेश्चन एंड क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन Q&A। तो यू कैन फॉलो द स्ट्रक्चर कि तुम्हारे कॉलेज वाले भी ऐसा ही कर रहे होंगे। दिस इज ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलेज जिसका मेरे पास क्राइटेरिया है। वी गिव यू अ समरी ऑफ हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन SIH इंटरनल हैकाथॉन। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको थॉरली समझ कर जाना। एक वर्किंग प्रोटोटाइप, कोई भी डिप्लॉयड लिंक अपने साथ रखना अपने प्रोजेक्ट की। ये ध्यान रखना कि एवरी टीम मेंबर शुड पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंटेशन। जो Q&A है उसके लिए तुम पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन पुट योर आईडी ऑन GPT एंड आस्क फॉर द Q&A, वो तुम्हें दे देगा क्वेश्चन, मैक्सिमम वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अपने टेक स्टैक जो तुमने यूज़ करा है उसके बारे में जान के जाना। जो मेंटर्स होंगे उनको टेक स्टैक के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। टाइम लिमिट में ही रहना और कुछ बैकअप फाइल्स रेडी रखना एंड अपना जो डेमो है उसको भी रेडी रखना। ठीक है, जो गिटहब एंड डिप्लॉयमेंट लिंक्स हैं वो भी अटैच कर देना अपने प्रेजेंटेशन में। जो अपना आइडिया है उसको इनोवेटिव एंड ओरिजिनल रखना। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है अब जहाँ तक मुझे लगता है इन दिस AI वर्ल्ड, बट ट्राई टू कीप सम इनोवेशन इन इट। रियल वर्ल्ड feasibility, okay, compete to stand out within your college and treat the internal round like the finals, ताकि क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द इंटरनल हैकाथॉन। इसके बाद तुम्हें थोड़े टाइम बाद फाइनल्स, अगर तुम्हारी टीम शॉर्टलिस्ट होती है तो इसके लिए फाइनल्स में भी जाना है, तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन दिस देन वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें उस फेज़ में भी। लिटिल बिट अबाउट अस, दिस चैनल इज मेंटेन्ड बाय मी एंड प्रियांशी।
we have reached the Smart India Hackathon 2025 Grand Finals, and in this series we are sharing all the resources and strategies we use to get there. It's everything you need to know about the 2 updates that I have to give and the internal hackathon process and some tips that I had to share. Let me know in the comment section that तुम्हारे कॉलेज ने इंटरनल हैकाथन के लिए मतलब तुम्हारे कॉलेज में इंटरनल हैकाथन खत्म हो गया या अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, एंड वेदर योर कॉलेज हैज डन द SPOC registration or not. ठीक है. Now our next video would be on SIH PPT and presentation guide. मैं इसमें अपनी फाइनलिस्ट वाली PPT शेयर करूँगा जो कि मैंने और प्रियांशी ने बनाई थी अपनी टीम में. Then if you have any questions, you can drop them in the comments. मैं और प्रियांशी reply कर देता है in the comments. And you can, if you have not subscribed to our channel, you can subscribe to Core Logic. If you want to connect with me on my socials, then मैंने अपने सारे links attach कर रखे हैं in the description. You can connect with me and ask your doubts about Smart India Hackathon or any other thing also regarding anything. So yeah, let's meet in the next video, guys. Bye bye.